Hello guys, you are watching Bros Reactions. My name is On Rizvi. मैं तो हूँ हमेशा की तरह मुकम्मल खूबसूरत और रिएक्शन वो जो दिल से निकले। तो आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं। उस वीडियो का नाम है I come from two Indias. I come from two Indias जो है वीर दास की वीडियो। और ये जो वीडियो है ये एक ऐसी वीडियो है जो कल अपलोड हुई है और ये ट्रेंडिंग नंबर 1 पे रही है। पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेंड किया इसने इंडिया के अंदर भी ट्रेंड किया है। अच्छा, दो तरीके से इसको लोग ट्रीट कर रहे हैं, कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कुछ इसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। मैंने ट्विटर पे देखा था, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था। कुछ लोग इसको वही बात है कि अच्छे उसमें जा रहे हैं, कुछ बुरे। अच्छा, इन्होंने परफॉर्म किया है कैनेडी सेंटर के अंदर जो कि वाशिंगटन डीसी के अंदर है। जॉन एफ कैनेडी के नाम पे जो है, जहाँ पे एक एजाज़ माना जाता है और उसको एक बहुत अच्छा वो माना जाता है वहाँ परफॉर्म करना। जॉन एफ कैनेडी जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे और उनको असैसिनेशन उनकी हुई थी 1974 में। मेरे हिसाब से तो ये तो मुझे पता है, लेकिन ये कि तुम थक ना जाओ, वीडियो देख लें पहले, फिर कर लेते हैं। बातें बहुत सारी हैं इनके बारे में, कोई डिटेल देते रहेंगे ऐसे लेकिन वहाँ पे परफॉर्म करने एक बहुत एजाज की बात होती है। वो तो लाजमी सी बात है, लेकिन ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतना सारा भी बोल दोगे तो वीडियो के बाद क्या बोलोगे? अच्छा ठीक है, ये भी अब देखो, अब थोड़ा सा तुम्हें और बोलना पड़ेगा क्योंकि ये आ गया। कैनेडी सेंटर। I wanted to try something since you're all, this is a moment for me. So, is it okay if I make a small video with you guys before I leave? Would that be all right? Yeah. We are at the Kennedy Center in Washington D.C. We are sold out. Did you have a good time tonight, guys? The temptation in this moment is to make a video about myself, and I don't want to do that because I'm reminded that I come from India. I come from which India? I come from two Indias. Those are the Indias that I bring on stage with me right now. I come from an India where children in masks hold hands with each other, and yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000, but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where we claim to be divided over Bollywood on Twitter and yet are united by Bollywood in the darkness of a theatre. I come from an India where we scoff at sexuality and yet fuck till we reach 1 billion people. I come from an India where journalism is supposedly dead because men in fancy suits in studios give each other hand jobs and yet women on the road with laptops are still telling the truth. I come from an India where we bleed blue every time we play green, but every time we lose to green, we turn orange all of a sudden. I come from an India where we laugh so loudly in the comfort of our own homes that you can hear us through the walls, and yet I come from an India where we break down the walls of a comedy club because you can hear laughter inside. I come from an India where old leaders will not stop talking about their dead fathers and young leaders will not stop following their living mothers. I come from an India that has the largest working population under 30 on the planet but still listens to 75-year-old leaders with 150-year-old ideas. I come from an India where every time we get information, we are always available to care for the PM, but we can't seem to get any information on PM Cares. I come from an India where we kicked out the British, but yet we call the government the ruling party. I come from an India where women wear saris and sneakers and yet have to take advice from old men who have never worn a sari and will never get to take one off in their entire lives. I come from an India where our music is bahut hard, but our sentiments are bahut soft. I come from an India where people sleep outside on the road outside the club, but man, 20 times a year the road is the club. I come from an India where we take pride in being vegetarians and yet run over the farmers who grow our vegetables. I come from an India where we claim to fully support the troops until it comes to their pension plans. I come to an India where we can never be on time no matter where we go.
ये तो But yet पाकिस्तान we की- are always early on the Co-Win website for some reason. I come from an India where we have maids and drivers and yet want to come to America to do their job. I come from an India that self-serves, and I come from an India that self-preserves. I come from an India that will not shut up, and yet I come from an India that will not speak up. I come from an India that will accuse me of airing our dirty laundry, and yet I come from an India that wears their heart on their sleeve, irrespective of how dirty their clothes are. I come from an India that tells me every single day to go to Pakistan, and yet I also come from an India that invites Pakistanis over every single day. If only to whoop their ass on a cricket field. I come from an India that is going to watch this and say, this isn't stand-up comedy. Where is the goddamn joke? And yet I come from an India that will watch this and know that there is a gigantic joke. It just isn't funny. I come from an India where children living in basements and writing on comment sections have more courage than men in skyscrapers. I come from an India that is Hindu and Muslim and Christian and Sikh and Parsi and Jew, and when we all look up at the sky, we only see one thing together, the price of petrol. I leave you tonight and I go back to that India. Which India do I go back to? Both of them. Which India am I proud of? One of them. Which India is proud of me? None of them. I wanted to do this because we're at the Kennedy Center. You know, this is a dream for an artist. It's been mine for a very long time. And the reason it's a dream is because you get to see great people here. You get to see greatness on this stage. And this whole room was built for a great man in his memory. But as I stand here before you, I'm reminded that I represent a great people. Great people who built a great thing that is turning into a memory. And I know that you believe in that India like I believe in that India because I see it in your eyes and you are in this room tonight. So before I leave your country, I will leave this stage and I will put the camera on you and you make some noise for the India you want to live in, because I promise you that this is the Kennedy Center, but tonight this is our fucking house. So make some noise for India. ब्लैक पे लिखा हुआ टू इंडियाज। तो खैर बातें तो बिल्कुल सही करी। क्या कहना चाहेंगे आप इस वीडियो के बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि जो भी गाए ना 100% अच्छा गाए, क्योंकि ये जो लीडरशिप की इन्होंने एक पॉलिटिक्स वाली बात करी कि हमारे पास 75 साल के जो लीडर हैं और फिर उनके आइडियाज साल पुराने, तो ये सब मेरे ख्याल से अब नए लोगों को मौका देना चाहिए। और इंडिया में भी काफी नए लोगों को मौका दिया गया, उनके भी प्राइस पेट्रोल के ऊपर चले गए, हमारे भी प्राइस पेट्रोल के ऊपर चले गए। और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो एक सोच चाहिए और नई सोच चाहिए उसके लिए, और उस ये इन्होंने बेहतरीन किया है जो भी किया है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक कॉमेडी थी, एक मैसेज था और सच्चा था यार, मतलब कुछ गलत नहीं था, दिल से लिखा हुआ लग रहा था बिल्कुल। और उन्होंने जो बातें की, एक तो बात मुकम्मल खूबसूरत को बताई कि हम मतलब मैं ऐसे इंडिया से आता हूँ जहाँ पे मतलब 150 साल की सोच रखने वाले मतलब क्या लीडर्स हैं और ये हैं वो हैं। बाकी एक पाकिस्तान का जो उन्होंने बोला, दो जगह पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का जिक्र किया। एक तो ये कि मैं उस इंडिया से आता हूँ जो पाकिस्तान जाना भी चाहता हूँ और पाकिस्तान को इनवाइट भी करना चाहता हूँ। दो बातें उन्होंने की। टू whoop their asses in cricket, कुछ ऐसे ही लिखा क्रिकेट। अच्छा क्रिकेट की जो बात करी वो उसमें मेरे समझ में नहीं आया कि अभी जो मतलब क्रिकेट में बजाने के लिए हाँ, लेकिन अभी मैं बजाना चाहता हूँ और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अभी करंट सीन तो कुछ और हुआ है, इसका उल्टा हुआ है यार। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इंडिया पाकिस्तान की जो
क्रिकेट मैचेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और ये भी उसने बोला कि मैं ऐसे इंडिया से आता हूँ जो कि ब्लीड ब्लू होता है, और मतलब जब पाकिस्तान से जब वो हार जाते हैं, जब ग्रीन से वो हार जाते हैं और तो ऑरेंज हो जाते हैं। तो उन्होंने मतलब बहुत एक अच्छी बातें की, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वुमेन के ऊपर भी उन्होंने अच्छी खासी बात की। तो जो दिल्ली के अंदर सी उसने एक बहुत अच्छी बात भी बोली कि फार्मर्स के ऊपर उसने जो बोला, हाँ उस पे जो उन्होंने बोला ना कि यार वो फार्मर मेरा ये हमेशा गलत हो जाता है, फार्मर किसान। तो किसान के लिए तो मैं ये कहूँगा कि यार जितनी भी इस वक्त मतलब वो एशिया कंट्री जितनी भी है वहाँ पे तो यही होता है कि आप जितने भी पॉलिटिक्स नए बन रहे होते हैं या जो बने हुए होते हैं वो उनको जो है ना लीडर बनाने में किसानों का ही हाथ होता है। उनको मतलब इतना सपोर्ट, लोग उन पास जाते हैं वोट के लिए और फिर जब वोट मिल जाता है तो फिर उनको कोई वैल्यू नहीं होती। तो किसानों को तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। और किसान से मैं एक बात और भी ये कहूँगा कि अभी कुछ टाइम पहले इंडिया में एक किसानों के खिलाफ जो है क्या मतलब बड़ा एक उसको क्या कहते हैं पुलिस की तरफ से मतलब वो उनको लीडर्स की तरफ से ऑर्डर था कि भाई किसान एहतजाज पे आए हुए महंगाई की वजह से इनको हटाया जाए रोड के ऊपर से। तो उसमें जो है वो सिद्धू सर जी जो है वो भी रोड पर निकले थे और किसानों के हक में उन्होंने बात करी थी। तो किसान को तो हर चाहे वो कंट्री कोई सी भी हो किसान को तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत इस वक्त किसान कर रहे हैं मेरे ख्याल से इस वक्त किसी कंट्री में किसानों से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये है कि और दूसरी बात एक बहुत अच्छा बोले आप। तो वीडियो रुकी नहीं डाली गई नहीं ओके भाई क्या हो गया तुम्हारा ये अचानक से जो आया ना मुझे एकदम से मुझे वो कर दिया। आप कंटिन्यू करिए। अच्छा और एक और चीज मैं ये कहूंगा कि इन्होंने जर्नलिज्म की जो बात करी वो तो बिल्कुल इन्होंने सही करी कि आजकल जर्नलिज्म सिर्फ अगर चैनल देखें ना हम लोग यूट्यूब देखें या टीवी देखें तो हमारे पास जर्नलिज्म में जो बचता है ना तो कोई बात नहीं करेगा, या तो सिर्फ उसको चाहिए किसी एंकर को मशहूर होना है तो वो इंडिया पाकिस्तान लेके बैठ जाएगा। भाई मुल्क में क्या हो रहा है, जर्नलिज्म का मकसद क्या है वो किसी को नहीं पता। अब वो उसने ये बात बिल्कुल सही करी कि जर्नलिज्म कॉमेडी में कन्वर्ट हो गया। कॉमेडी ट्विटर पे ये बातें चल रही है कि जो कॉमेडियन है वो जर्नलिस्ट बना हुआ है, जर्नलिस्ट है वो कॉमेडी कर रहा है। तो ट्विटर पे एक ट्रेंड चला हुआ है और इन्होंने बहुत अच्छी बातें की। मतलब इनके जो सारे पॉइंट थे ना वो सारे ही अच्छे थे। मुझे सब तो याद नहीं, उसमें कुछ थे कि भाई मैं एक ऐसे इंडिया से हूँ जो कि बहुत बोलता है और मैं एक ऐसे इंडिया से हूँ जो कि कुछ नहीं बोलता जब बोलना होता है। उनका मकसद ये था। और मतलब मैं एक ऐसे इंडिया से हूँ जहाँ पे म्यूजिक तो बहुत हार्ड है और जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं। बहुत अच्छी बातें की, बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो फैन हो गया इस बंदे का जो उसने पर। और एक और चीज मुझे उनकी अच्छी लगी कि मतलब वो हिंदू मुस्लिम ईसाई के वो सब आसमान की तरफ देख रहे हैं, सब रहते एक जगह आसमान की तरफ, एक ही आसमान पे देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि पेट्रोल के प्राइस कहाँ जा रहे हैं। तो यार ये तो है खैर। और मतलब बहुत सारी बातें थी। मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग गलत कह रहे हैं ना वो एक दफा और तफसील से इनको सुने, सुकून से बैठ के सुने, सारी बातें राइट करिए। बिल्कुल। और आखिर में जो उन्होंने बोला था ना मैं कौन से इंडिया वापस जाऊंगा, वन ऑफ देम। और किसी इंडिया को मुझ पे प्राउड होगा, नन ऑफ देम। तो जैसी उन्होंने बात की थी आखिर में वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो एक प्रॉपर जैसे कहते हैं ना प्रॉपर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और आपको पता है कि कैनेडी सेंटर के अंदर परफॉर्म करना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए। वहाँ पे म्यूज़िक परफॉर्म किया जाता है और वहाँ पे ये स्टैंड अप भी परफॉर्म करते हैं और बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। जॉन एफ कैनेडी का आपको पता होगा कि उनके नाम पे ये सेंटर है और जब से ही बना है तब से ही बहुत मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट ने वहाँ पे परफॉर्म किया है। अच्छा लेकिन मैं एक बात बताऊँ, तुमने ये बात करी ना कि वहाँ पे जो है क्या स्टैंड अप कॉमेडीज भी होती है, तो मैं ये कॉमेडी नहीं स्टैंड अप मतलब परफॉर्मेंस किसी भी तरह का होती है। लेकिन इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई आया होगा या आएगा। कुछ बातें इनकी गलत भी लगी होंगी वहाँ के रहने वालों को, कुछ बातें मतलब दिल को लगती हैं, जाहिर सी बात है हम तो वहाँ रहते नहीं। बात सोच की है ना, अगर वो वाली बात ये देखो कि हमारे 75 साल का लीडर क्या करेगा, तो वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह सेम है, यहाँ पे भी ऐसा ही है भाई। मुझे पसंद इसलिए है कि यहाँ पे भी हम लोग वही चीजें फेस कर रहे हैं जो आप लोग वहाँ भी करते हैं। पेट्रोल की प्राइसेस हर जगह पेट्रोल की प्राइस हर जगह है, किसान के साथ गलत हर जगह हो रहा है। ठीक है, जर्नलिस्ट क्या काम कर रहे हैं ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, एक इधर से ऑनलाइन एक उधर से ऑनलाइन, बातें कुछ मतलब यार ये काम है कोई। मुझे पता है ना इंडिया के लोग 75 साल का लीडर कौन नहीं भुगत रहा,
तो भाई मतलब 50 साल के अब्बू जी हो जाए तो आप उनको बोलो रिटायरमेंट ले लो, काम नहीं करना, लेकिन लीडर 75 साल वाले को वोट दे रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ है भाई। तो वो एक सोच का है, ये वोट जा रहा है दरअसल ना उसको, शख्सियत को वोट जा रहा है कि अगर मुझे मोदी जी पसंद है ना तो मुझे ये नहीं देखना कि वो 80 साल के 75 साल के हैं, मैंने उनको वोट देना है। अगर यहाँ पे नवाज शरीफ है, इमरान खान है, मतलब हमें उम्र से तो मतलब ही नहीं है, हमें सोच में फर्क आ जाता है। शख्सियत जो है ना वो पर्सनैलिटी, इन्होंने वो बात करी है, तो सोच का मसला है सारा और कुछ भी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि भाई नए आइडियाज होना चाहिए। जिस तरह वो एंड में गए हैं ना लाइट बंद करके, वो मजा आ गया था देखने। हम तो समझे दोबारा आए हैं कुछ बोलने के लिए। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा मजा आया देख के। और वो जो पाकिस्तान के ऊपर 2 पॉइंट्स थे वो भी बड़े अच्छे थे। ओवरऑल बहुत अच्छी थी, 10 आउट ऑफ 10 वीडियो को मैं रेट करूँगा। और फिर एंडिंग दे देंगे भाई। अच्छी वीडियो सजेस्ट करने के लिए आप जा सकते हैं facebook.com/bros-reactions। हर वीडियो में फंबल मैं फिर बीच में बोल देता हूं ताकि तुम साथ दे लो। हर वीडियो में फंबल हो रहा है, पता नहीं चंडीगढ़ को मैं चंडीगढ़ पढ़ रहा हूं। फंस गया पिछली 3 वीडियो में हमारे पास ना, इसके गले में फंसा हुआ है चंडीगढ़ करे आशिकी। और आप साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कीजिए हमें फॉलो। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है ऑनरिजवी। मुझे तो आप हर जगह ढूंढ सकते हैं, मुकम्मल खूबसूरत लिखने की देर है बस। वहाँ पे जाके आपने करना है फॉलो और अच्छी बातें कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं वीडियो सजेस्ट, ढेर सारी बात तुम्हारे मुकम्मल खूबसूरत। अगर तुम टाइम पे बोल दो ना तो मैं फंबल के बगैर अपनी लाइन बोल दूं, पिछले 3 वीडियो से बोल रहा हूँ। अब अगर तुमने किया ना, मैं इसका इंस्टाग्राम लगाऊंगा नहीं, आप नहीं करिएगा इसको फॉलो। So you guys are watching Bros Reactions. My name is Juan Rizvi and his name is Mukammal Khoobsurat. Goodbye.